Namaste, ji, namaste. Welcome to Courtroom. Hope you're doing well. I hope that you have scored decently well and will be soon going to the Faculty of Law. Now, this is going to be a three lecture series in which this is part 1, part 2 and part 3 will follow. Part 2 and part 3 will follow tomorrow and day after tomorrow respectively, in which we are going to be discussing each and every question of the question paper. Because today I have studied the question paper, I have analyzed it, I have made certain conclusions about it which I wish to share with you. And mainly we are going to be discussing, are there any objections to be raised in this specific session? What is going to be the expected cutoff? Now, I am not a Jyotishi, I am no Antaryami. We are going to be basing the cutoff on certain reasons. Maybe the analysis turns out to be true, maybe it doesn't turn out to be true. We really cannot say anything, but ठीक है, एक अंदाजा लगा के देख लेते हैं. अब अंदाजा ही होता है, क्या पता गलत हो जाए, क्या पता सही हो जाए. We always have to keep a pragmatic view in mind. Now, we look at first and foremost, we look at the question paper structure. So in 21 and 22, legal was 48 and legal was 55. When I'm saying legal, I mean constitution, IPC contract, tort, IPR, etc., international law, etc. तो ये mostly 48 से 55, थोड़ा सा portion बढ़ा. CA and GK, it went from 41 to 21. 4 एक करंट अफेयर आए थे और रफली अराउंड 17 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कह सकते हैं कि आए थे. Some were very easy, but some were quite difficult as well. Difficult as in, when I'm talking about difficult, I'm not talking for all students, talking for most of the students. Alright. English went from 5, that is, जब भी 5 हो इंग्लिश में, that means एक पैसेज और 5 क्वेश्चंस हैं. It went to 14. Antonyms, synonyms आपसे पूछे थे, idioms, phrases पूछे गए थे. Logical went from 2 to 10 and maths went from 4 to 0. Alright. So mostly if you see, main thing that happened in the question paper was here, that this section, the 20 questions got distributed basically here. 8 got distributed here and then 12 etc. must be going somewhere here. मतलब ये पूरी यहाँ पे adjustment हो गई. Alright. उस basis पे हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएंगे. But before going further, as per me, and I may be wholly incorrect here, there are no objections to be raised. वो GI tag वाला जो question है, it is absolutely crystal clear. Don't waste your money. एक international law पे question number 62 पे काफी लोगों ने बातचीत करी कि question number 62 में I think just cogence is same as that fancy international law term. No, it's not. It is different and the question is absolutely clear. Mostly मेरे हिसाब से objection नहीं sustain हो पाएगी. Still, if you wish to go ahead with it. Otherwise, I don't think that there is any objection to be made in the question paper. The answer key is mostly absolutely crystal clear. The questions also, there was no ambiguity, which is a rarity for a law entrance. नहीं तो usually हर 2-3 सवालों पे मुद्दा हो जाता है, बहस हो जाती है students के examiner के साथ, and usually mostly the students turn out to be correct, but this year it's pretty much the उल्टा. तो वो आप एक चीज़ दिमाग में रखिए, that there are, as per me, there are no objections to be made. Alright. अब देखते हैं कि जी कट ऑफ के साथ क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो हमने कल डिस्कस करना है. सबसे पहले हम लीगल का पोर्शन ही डिस्कस करेंगे एंड देन इन द सेकंड पार्ट, एज इन द थर्ड पार्ट, फाइनल पार्ट, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल दीस क्वेश्चंस एंड वी आर डन विद DULLB 2022. नाउ लास्ट ईयर आल्सो देयर वर अबाउट 58 odd questions which were absolutely doable in the examination. They were doable for all. So we always, whenever we calculate the cutoff, we always are basing our assumption on an average student. All right. Now coming to the point, this was the number for the first unreserved की जो basically जो merit list जो आती है उसमें first cut off था 234. It eventually ended at 232. I'm not talking about the 232 number, talking about the 234 number. Now as per the data that we have from our own academy, जिसके ऊपर मैं ये बातचीत basis कर रहा हूँ, a lot of people, in fact most of them, have done exceptionally well, and all credit to their own effort and preparation in this. 15 एक सवाल were I won't ever claim that they were 1-to-1 from mocks और मैंने ये कराया था, मैंने वो कराया था, वो सब मेरे बस की बात नहीं है. But we were very well prepared in the legal section. Static GK में, static GK was थोड़े अच्छे ठीक ठाक लेवल की थी, तो काफ़ी लोग वहाँ पे लड़खड़ाए होंगे, बट उन्होंने इंग्लिश में कवर आउट कर लिया होगा. आई एम डैम श्योर ऑन दिस.
बिकॉज दी एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ठीक है, एक दो तो नहीं आते, किसी को भी नहीं आ सकते सारे के सारे एग्जाम में। और इस एग्जाम में कम से कम 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्जामिनर कहता था अच्छा सुना है, तुम पढ़कर आए, करो ये। तो वो क्वेश्चन हमने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाथ नहीं लगाने होते। ऑलराइट, आई एम बेसिंग माई assumption that on the basis of the data that I have, on the basis of people not crying about the exam as much as in last years, perhaps the cutoff can go up by +2, or worst case scenario, absolute worst case upper limit scenario goes to 238. This is worst case. I believe that it goes to +2 or it goes to a -2. Now this depends on how many people have done well. Obviously अब मेरे पास पूरे ब्रह्मांड का डेटा तो है नहीं कि जितने लोगों ने जाके बैठ के एग्जाम दिया है, एंड आई एम बेसिंग माई assumption और कैलकुलेशन ऑन दैट, बट मेनी पीपल हैव डन वेरी 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 वेल, and if that data is correct, if they have input their details correctly, we have somewhere around 35 के तकरीबन sitting above 300 already, जिसके अंदर अभी काफ़ी जनता जागी नहीं होगी, काफ़ी जनता बताती भी नहीं है। और काफ़ी जनता, आप याद रखिएगा, जब भी आप इंटरनेट पे रोना पिटना शुरू करें कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था, मेजॉरिटी आदि साइलेंट मेजॉरिटी जो सिर्फ पॉपकॉर्न बैठ के केवल मज़े करती। तो इफ़ यू सी दी कमेंट्स कि अरे मेरा बहुत बर्बाद हो गया क्वेश्चन पेपर में, क्या क्या पूछ लिए, 15-20 ही होते हैं, एंड दे प्रीटी मच आर द सेम अकाउंट्स। एंड मुसीबत ये ऑन द इंटरनेट वी कांट इवन आइडेंटिफाई, एनीवन कैन क्रिएट एनी anonymous अकाउंट, बेसिकली कैन डू एनीथिंग, राइट? सो डोंट बेस योर कंक्लूजन ऑन देयर। बहुत लोगों का बहुत अच्छा भी हुआ है, बट कट ऑफ जैसे हम कहें कि अरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 250 हो जाएगी, 260 हो जाएगी, 270 ऐसे नहीं होता। स्टॉक मार्केट जब चढ़ती है ना तो बहुत धीरे 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 धीरे, लेकिन गिरती है तो एक ही बार में गिर जाती है। तो जो कट ऑफ जो चढ़ने का मतलब ये है कि बहुत सारों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, ऐसा भी नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल गिवन द क्वेश्चन पेपर। So we are looking at a +2 or a -2 scenario. So either it goes to 236 in the first instance, or it goes to a minus, basically, or it starts off from 232, right? तो अब ये तो ईश्वर ही बताएगा कि क्या होगा, but I think if I'm being optimistic, I say it goes to 236. So if you have, let us say, anywhere above a 235 in the unreserved category, if you keep your fingers crossed, 236 के आसपास भी you will pretty much end up making in the second or the third list. 238 के ऊपर है तो आप mostly you are mostly through and you have a seat, right? Now unreserved की इतनी है तो आप OBC EWS में भी ये +2 -2 पिछले साल का कट ऑफ देख लीजिए और उस पर आप लगा लीजिए। क्वेश्चन पेपर ना ही बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन ना ही बहुत ज़्यादा सरल भी था, ऐसा नहीं, ये गलत होगी बात, क्योंकि एग्जामिनेशन मेरे लिए आपको यूट्यूब पे प्रवचन देना बहुत आसान है कि अरे ये तो बकवास, ये कैसे क्वेश्चन, ये तुम कैसे गलत कर सकते हो, ये ऐसे नहीं होता है। जब एग्जाम में जब घड़ी चल रही होती है सर पे, एग्जाम का प्रेशर है, उस दिन के सुबह का विराट कोहली भी फाइनल में जाके अगर 0 पे आउट हो जाए तो कोई क्या करेगा? इट इज़ नॉट दैट ही इज अ बैड बैट्समैन, दिस हैपेंड टू अस इन द सेमीफाइनल विद न्यूजीलैंड। पहले 3 हमारे ओपनर ही एक रन बना के आउट हो गए एंड इवेंचुअली वी लॉस्ट द मैच बाय 15 रन्स। होपफुली दिस डजंट हैपन इन द 2020 वर्ल्ड कप दैट इज गोइंग ऑन नाउ। सो एग्जाम के दिन क्या होता है नहीं बता सकते, एंड एग्जाम एंजाइटी में क्वेश्चंस गलत पढ़ लिए जाते हैं। एग्जाम एंजाइटी में ये भी होता है कि कभी कभार बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जो हम मार्क करना चाहते हैं क्या पता उसकी जगह कुछ और मार्क कराएं। तो इसीलिए when you see the option choices, when you see the style of questioning, I would say it was just like any other year. It wasn't exactly any different, just that current affair questions कम आ गए तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा खुंदक हो गई कि अरे करंट अफेयर इतने सारे करके गए तो इसने पूछा ही नहीं, तो हमारी तो मेहनत यूजलेस हो गई। नहीं, अगर आसमान में बादल हैं और आपके पिताजी ने अगर एक पास्ट ईयर देखकर एक छतरी रख दी आपकी गाड़ी में कि मेरा बेटा एग्जाम सेंटर में उतरेगा, क्या पता बारिश हो बच जाए। अब वो छतरी अगर बारिश नहीं हुई तो क्या मतलब वो छतरी बिल्कुल ही बेकार चीज़ हो गई या आपके पिताजी गधे निकले? ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर्स, अब क्या अगले साल मतलब करंट अफेयर ही नहीं पूछेंगे जस्ट बिकॉज इस साल बहुत कम पूछे, या आप प्रिपेयर नहीं करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है जी? तो बहुत दुनिया रो रही थी यार ये करंट अफेयर तो पूछा ही नहीं, पागल बना दिया ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये जो क्वेश्चन है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ये मैच द फॉलोइंग जो इन्होंने अलग अलग दे रखे, वेरी वेरी स्टैंडर्ड, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी नुन्नू मुन्नू प्रकार के क्वेश्चंस। और वो आपका कॉम्पिटिशन एक्ट वाला और ये सब, ये तो पास्ट ईयर में ही मिल जाएंगे आपको। और ये जैसे आप ये थर्ड जेंडर रिकग्नाइज, दिस इज ऑल्सो वेरिएशन, दीज आर ऑल वेरिएशंस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो पेपर
उतना तो कठिन नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि जी बिल्कुल ही बहुत सरल था, बस आराम से निकालो जी 300 पार, सब क्या नहीं होता। अगर ऐसे ही हो रहा होता देन तो मतलब द कट ऑफ विल शूट अप टू 300 प्लसेस, राइट? तो कट ऑफ इफ शूट्स अप देन इट गोes to +2. I say it goes to +4 as well. There is a chance because a lot of people have done a lot better. But if it has to fall down, then it falls down by -2 only. It goes to 232. So first unreserved. अब ये now this is absolutely insanely this can go wrong. Alright, because भाई 15, 16, 20,000 लोगों ने डेटा दिया है, मैं 200, 300 को देख के अपना एक तुक्का मार रहा हूँ। तुक्का गलत भी हो सकता है, सही हो गया तो आप ईश्वर हो जाते हैं कि हाँ उस आदमी को बहुत पता है, हर किसी की यही हालत है। गलत हो गया तो अरे जी वो तो गधा जी है। तो ये चीज़ें आपको रियलिस्टिकली दिमाग में रख के चलनी है। ऑब्जेक्शंस कोई है नहीं इस क्वेश्चन पेपर में। दिस इज प्रीटी मच द क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर। कल लीगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कल बेसिकली, क्योंकि अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 8, सवा 8 हो ही गए, अब घर जाने का भी समय हो गया है। तो कल मिलते हैं और कल डिस्कस आउट कर लेते हैं लीगल का काम, और उसके बाद फिर डिस्कस आउट कर लेते हैं एक ही लेक्चर में इंग्लिश, लॉजिकल एंड ये आपका सीए एंड जीके। और स्टैटिक जीके भी ठीक ठाक लेवल की थी। कोई कहे हाँ ये वो जो कौन सा भी जो डैम पूछा हुआ ये आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता होता भैया, वो तो एंडलेस है ना। तो ऐसे तकरीबन 5 से 7 प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे थे जो कि क्वाइट अच्छे खासे लेवल के थे, बट अराउंड 58 to 60 ऑड क्वेश्चंस वर वेरी वेरी डूएबल। अब फिर गेम आ जाती सारी नेगेटिव्स की, इसीलिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, राइट? So hopefully this has been of help to you. Hopefully this helps you reduce your anxiety. I'll see you tomorrow to discuss out the question paper. पहले legal का काम करते हैं, फिर आगे चलेंगे. Alright, wishing you all the very best and keep it real and keep yourself in check and wait for the results which will most likely come out Monday, Tuesday, Wednesday में कभी भी. As soon as that preference window closes on Sunday night, you can pretty much expect the result within 3 to 4 odd days. ठीक है जी, क्योंकि वो पहले आपको डेट शीट अनाउंस करेंगे, फिर मतलब एज एन शेड्यूल अनाउंस करेंगे आपके एग्जाम का, और फिर आपसे आगे बातचीत करेंगे कि 3 से 4 दिन के बाद आपको पहली मेरिट लिस्ट दे देंगे, फिर आपको काउंसलिंग पे बुला लेंगे. कीप योर डॉक्यूमेंटेशन रेडी. ऑलराइट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. सी यू टुमारो. बाय.